ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਮੋਲ ਨ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀਪ ਆਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਖੁਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀਪ ਆਹ। ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अगर पहाड़ नहीं है तो खाई भी नहीं हो सकती है।
अगर पहाड़ है तो फिर खाई भी है। एक पहाड़ है साडे अंदर ते खाइयां बहुत सारियां ने। पहाड़ सिर्फ अहंकार दा है, बाकी विकारां दियां खाइयां अंदर ही ने साडे। ते सब तो वड्डा पहाड़ की है? मैं हाँ तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं ही हाँ तो कुछ भी नहीं है। हर बंदा अपने आप नूं यही आखदा भी मैं सब तो वड्डा, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, यही आखदा ना। ते भगत कबीर साहब कहते ने आपस को दीरक कर जाने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्म ना हों देखे दोजक जात। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, मेरे सिवाय इसनूं कोई नहीं कर सकता है। हर बंदे दे अंदर यही अहंकार चलता रहता है। बस मैं कर सकदा, ये तुहाडे दिल्ली दी गल है, क्योंकि ये समागम मस्कीन साहब जी की याद नाल भी जुड़िया होया है। इत्थे दिल्ली दे विच ही एक सज्जण ने मस्कीन साहब नूं एक गुरुद्वारा दिखाया। कहते मस्कीन जी देखो ये हाल मैं बनाया है, ये लाइटिंग मैं कराई है, पालकी मैं बनाई है, लंगर हाल मैं बनाया वे, ये स्कूल चलता पिया ये भी मैं चलांदा पिया, अगर मैं ना होवां तो ये स्कूल भी नहीं चल सकता है। फिर कल जेड़ा नगर कीर्तन निकलना है, अगर मैं ना होवां तो ये नगर कीर्तन भी नहीं निकल सकता है। ये सब कुछ मैं ही करांदा पिया। कि जदों उसने बहुत ज़्यादा ही आख्या ना भी मैं कीता है, मैं करना है, मैं कर सकदा, तो मस्कीन जी किसी कोलों डरदे तो है नहीं सन। क्योंकि एक शायर भी कहता है सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जे सच गुरुद्वारे विच नहीं बोलांगे तो फिर कित्थे बोलांगे जाके। जब उसने बहुत ज़्यादा ही किया ना भी मैं कर सकदा, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, तो मस्कीन जी कहते ने मित्रा तू मर के देख, तेरे मरण तो बाद भी ये सब कुछ चलता रहना। कोई तू करांदा पिया, कराउण वाला तो साडा गुरु है, पर असी कोई काम कर दईए उत्ते मोहर अपने नाम की ला दिंदे आ, ये मैं कीता है, मैं कर सकना, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। गुरुद्वारे दे विच ही असी अपने नाम नूं ही लभण आउंदे हां, मेरा नाम होना चाहिए है। किसी जमाने दे विच जदों असी मत्था टेकदे सन गुरु साहब नूं, तो दोनों हत्थ साडे जमीन ते हुंदे सन भी सतगुरां दे चरनां ते ने, ते मस्तक रख के फिर अरदास करदा सी ते मत्था टेकदा हुंदा सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ऐसे ऐसे कपड़े असी गुरुद्वारे विच पा के आ जाने जो नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि मैं तुहानू बेनती करदा पिया, अज बहुत साडा सिस्टम बिगड़िया पिया बिल्कुल ही, और दिन पे दिन हालात खराब होंदे जांदे ने। महाराज ने बड़ा सोहना सिंपल सुंदर स्वरूप बख्शिया सी भी खालसा मेरो रूप है खास, तेरे इस दीदार दे विचों गुरु दे दीदार हो जान सन। पर कदी अपने आप भी झात मार के देखिए, क्या ये साडे दीदार गुरु दे दीदार ने?
नहीं ਹਨ बिल्कुल भी। पर साड़ी कोशिश ये होंदी है बई मैं गुरुद्वारे आया तो सब तो महंगा सूट पा के आना है। होना तो ये चाहिए सी कि सादे सिंपल कपड़े पा के भी तैनू देख के किसी का मन भटके ना। गुरु नानक साहब ने तो आख्या जिहड़ा इस तरह करदा है ना उहदे पाए हुए कपड़े पाप का कारण बन जाते हैं। बाबा होर पहनन खुशी खुआर जित पैंदे तन पीड़िए मन में चले विकार। ऐसे कपड़े जिन्होंने देख के मन दे विच विकार चलते होण। महाराज कहते ने ये बहुत वड्डा पाप है। एक साड़ी भावना होंदी है भी गुरुद्वारे जाना है, सारियां दी निगाह हुण मेरे उत्ते होनी चाहिए है। थोड़ा जिहा असीं दान दे दिंदे आ, फिर साड़ी मनसा होंदी है हुण साडा इत्थे नाम लिख दिओ। ये 11 रुपये मैं दिते ने, 21 रुपये मैं दिते ने, थोड़ी जी पेटा ये मैं दिती है। हुण मेरा लिस्ट दे विच नाम होना चाहिए है। अरदास करन वाला भावें 40 मुक्तियां दे नाम भुल जावे, 5 प्यारियां दे नाम भुल जावे, 4 साहिबजादियां नूं भावें भुल जावे, पर साडा नाम नहीं भुलना चाहिए है। अरदास एक ऐसी बख्शिश है जो बहुत ही एकाग्रता दे नाल करन वाली है। एक शायर कहता है, दिल से जब बात निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जिहड़ी दिलों अरदास होवे ना परमात्मा कबूल करदा है, पर असीं ते अरदासीए नूं अरदास करनी नहीं देंदे। 3-3 लिस्टां उहदे हत्थ विच आउंदियां ने, साडा नाम बोलो हुण। मस्कीन साहब जी पटना साहब की धरती ते एक दिन शाम के वक्त रहरास साहब का पाठ कर रहे सन। उन्होंने देखा भी सामने फर्श के उत्ते एक बुजुर्ग कुछ लभदा पिया है। पाठ की समाप्ति तो बाद मस्कीन जी ने पूछया, मित्रा तू की लभदा पिया? वो कहता भी कुछ नहीं लभदा पिया, पिछले साल मैं 1100 रुपये दे के गया, प्रबंधकों ने कहा सी तेरा नाम लिख देंगे फर्श के उत्ते। मैं अपना नाम लभदा पिया भी लिखिया कि नहीं लिखिया है। तो मस्कीन जी ने हाथ जोड़े, कहते ने बाबा जे तू गुरुद्वारे दे विच भी अपना नाम लभेगा तो परमात्मा का नाम लभण फिर तू कित्थे जाएगा। पर असीं इत्थे अपना ही नाम लभण वास्ते आउंदे हां। चलो मैं इत्थे एक अर्ज होर कर दियां। गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह जी रात नूं विश्राम कर रहे सन। तीसरा पहर अजे शुरू होया ही सी ते कुछ संगतां कीर्तन करदियां होइयां सतगुरां दे बिल्कुल नेड़ियों निकलियां हन। गुरबाणी की आवाज़ महाराज के कन्नां दे विच पै गई। कहते ने एकदम महाराज जदों पलंग तो उठे ने तो उन्होंने गोडे ते फिर सट लग गई। थोड़ा जा खून भी निकल गया। तो संगतां ने आख्या महाराज बाणी तुहाडी है, तुसी इतनी काल दे विच इतनी जल्दी दे विच क्यों उठे हो? गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कन्नां दे विच बाणी पवे तो मैं सुता रवां, ये कदी हो ही नहीं सकता है। ये कदी नहीं हो सकता है। जिन पे बाणी अदब न तारा, जानो नाही सिख हमारा। जेड़ा बाणी पढ़न लग्या या सुनन लग्या उच्चे अस्थान ते बैठदा है, महाराज कहंदे ने वो साडा सिख नहीं हो सकता है। जिसने गुरबाणी का सत्कार नहीं किया। पर अज साडे अंदर यही भावना होंदी है, गुरुद्वारे भी बैठना है तो फिर किसी उच्ची सीट ते ही बैठना है। किधरे प्रधान की सीट ते, किधरे खजानची की सीट ते, किधरे असी सकत्तर की सीट ते। अगर वो सीट ना मिले बंदा गुरुद्वारे आउणा ही बंद कर दिंदा है। इत्थे भी सानू उच्चियां सीटां चाहिदियां ने। क्यों? क्योंकि सारियां दे अंदर करीबन सब दे अंदर ये भावना होंदी है भी सब तो उच्चा स्थान मेरा होवे।
कोशिश असी ये नहीं करते कि सब तो ज़्यादा बाणी मैं पढ़ा, सब तो ज़्यादा गुरबाणी मैं सुना, सब तो ज़्यादा सिमरन मैं करा, गुरु की रहत मर्यादा मैं रखा। इस तरह की भावना तो साढ़े अंदर होंदी नहीं है, पर यही अंदर चलता रहता है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा अस्थान उच्चा होना चाहिए है। किसी जमाने दे विच किसी नूं कोई तकलीफ होंदी सी ना, तां वो आके गुरुद्वारे किसी उच्ची जगह ते बैठता हुंदा सी। मैं तो देखिया पहले चौंकी ते बैठते सन, फिर स्टूल आ गए, स्टूल तो बाद फिर कुर्सियां आ गईयां, कुर्सियां तो बाद हुण अगे चल पे ने, वधिया तो वधिया सोफा सैट लिया के ला दिते ने। हुण लोकी सोफे ते बैठ के गुरबाणियां सुनते हैं। पता नहीं इतनी हिम्मत कित्थों लै आउने असीं। किसी नूं तकलीफ होवे, मैं उसनूं बहण तो इनकार नहीं करता हाँ, बैठ सकदा वे, पर हुण एक रिवाज जिहा चल पिया भी जणा खणा ही बैठी जांदा वे कुर्सियां दे उत्ते। ते मैनूं ते डर लगदा है किधरे आउण वाले समय विच मंजे लैके ही ना आ जाण भी हुण असीं सौं के ही गुरबाणी सुणनी है, क्योंकि अगे वधदा ही जांदा पिया है। गुरु हर राय साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी का सत्कार करने की सानू जाच सिखाई है। भाई गोंदे नूं जिस वेले मंजी बख्शिश की सी ना, महाराज ने एक हुक्म दिता सी, गुरबाणी पढ़न वाला उच्चे स्थान ते बैठेगा, सुनन वाला भावें गुरु होवे ते भावें संगत होवे, वो थल्ले फर्श ते बैठ के गुरबाणी नूं सुनेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जदों पहला प्रकाश होया सी, श्री हरमंदर साहब दे विच फर्श दे उत्ते बैठ के हुक्मनामा सरवण कीता सी। बड़ी लंबी चौड़ी विचार है, पर इतना समा नहीं है। सतगुर सच्चे पातशाह मेहरामत करन। गुरबाणी उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी है। गुरबाणी दा सत्कार गुरु दा सत्कार है, गुरबाणी दा सत्कार अकाल पुरख दा सत्कार है। सतगुरु ऐसी दात बख्शिश करन कि ये बाणी साडे हिरदे विच वसे। मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। इस तरह की दात गुरु साडी चोली विच पावे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। ये दास दी आखिरी हाज़री है। कल तो कानपुर दे विच समागम शुरू हो रहा है, जिथे मस्कीन साहब ने आखिरी बार कथा विचार की सी, उत्थे दास ने पहुँचना है। सो इतनी सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।